Society, founded in 1888. You heard it correctly, 1888. It is 136 years old art institution. We have office in Jhanti Art Gallery, and this art complex started in 2016, inaugurated by our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi sir. बॉम्बे आर्ट सोसाइटीज का जो एम है स्टार्टिंग से यही रहा है कि आर्ट और आर्टिस्ट को जो भी तरीका हो वो तरीके से प्रमोट करे, टू प्रमोट द आर्ट अमंग द मासेस. Before independence, there was hardly any gallery. There was no gallery in India. Okay, first gallery, Jhanti Art Gallery, came in 1952. But उससे पहले भी Bombay Art Society is putting the annual art exhibition from 1889. तो that show, अभी जब गैलरी थी नहीं मुंबई में या तो इंडिया में, तो वो जो शोज थे पहले जो एग्जीबिशंस हुआ करते थे बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के, वो होते थे जेजे स्कूल ऑफ आर्ट जो 1857 में जिसकी शुरुआत हुई थी, या तो कभी कभी टाउन हॉल में जहाँ पे एशियाटिक लैंड है, या तो ओल्ड सेक्रेटरीट सर कावजी जहांगीर हाउस जहाँ पे भी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट. तो जब से जहांगीर आर्ट गैलरी बनी वहीं पे बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का शुरू हुआ है. तो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी being an old institution, our aim is always to see that we create different platforms where artists can come and participate, and those platforms should be again very affordable. High cost exhibitions, when we put up the show in the gallery, even in any city, the expenses are huge. So after COVID, we thought that the capacity of young artists or even mid-career artists, some senior artists, की काफी कम हो गई है, because in COVID buyer community also stop buying art, patronage कम हो जाता है naturally, because art is a luxury, super luxury. ऐसे daily requirement नहीं हमारी, it is not a food that we need every day. So इसलिए Bombay Art Society thought after COVID that we should start some exhibition which will be affordable to each and every artist. It will be displayed here in the gallery and promoted through our huge social media. Because today social media एक बड़ा गुण है, हमको एक वरदान मिला है, ऐसे समझ लीजिए. Because without spending much money, very small money, you can promote yourself, your art, your events, exhibitions through Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, and so many other platforms, websites. तो that is the motive that artists यहाँ पे participate करें कम से कम expense में, affordable rates में, so that they can reach to the wider audience, or then so slowly they can come in the mainstream art. So that was the purpose behind starting art festival, और वो काफी success हुआ है, because this is running continuously now for 3rd year, and this must be our 12th edition. Every year normally we do 2 to 3 editions depending on the requirement also, because sometimes artist people ask themselves after art carnival अभी चाहिए. We have very big exhibition, that annual art show वो तो होता ही रहता है, but that show is very difficult to participate. हमारे बॉम्बे सोसाइटी के एनुअल आर्ट एग्जीबिशन में करीबन 3-3,500 एंट्रीज आती है पूरे इंडिया से, और सिलेक्शन जहांगीर आर्ट गैलरी में शो होता है तो हार्डली 250 आर्ट वर्क्स आर सिलेक्टेड. तो उसमें काफी टफ है, इसलिए देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. आपको अगर हेलो एवरीवन, एक्चुअली जो भी आर्ट में काम करता है उसको सबसे पहले एक सवाल आना चाहिए, व्हाट इज आर्ट. सो व्हाट इज आर्ट? आर्ट इज अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन विद होम? कम्युनिकेशन विद आवरसेल्फ. ठीक है, तो एक ये पार्ट हो गया. और दूसरी तरफ जब हम लर्निंग कर रहे हैं, हम लोग कुछ सीख रहे हैं या एग्जिबिट कर रहे हैं, तो हमें ये दूसरी तरफ जानना जरूरी है कि वो कम्युनिकेशन किसी और के साथ भी हो जो गाइडेंस के लिए हो, आगे बढ़ने के लिए हो. तो दोनों एक साथ बैलेंस होना जरूरी है. जब भी आप वर्किंग करते हो, इट्स अ प्रोसेस, तो आप वो प्रोसेस में अपने आप से बात करो, अपने आप को समझने की कोशिश करो. मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे पेंटिंग सभी देखे हैं, तो काफ़ी सारे प्रोफेशनल वर्क्स हैं, मतलब हॉबी एज अ हॉबी हम लोग उसको नहीं देख सकते. काफ़ी सारा डिटेलिंग वर्क है
लेकिन उस प्रोसेस को आपको आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको खुद को जो सवाल है वो आप पूछो बेटर है। हम आपसे बातें करेंगे, उससे अच्छा आपके मन में क्या सवाल है, आपकी क्या मानसिकता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो थोड़ा प्रोसेस आपका आगे बढ़ेगा। ठीक है। Opening up our 12th edition of Art Carnival, Bombay Art Society's Art Carnival started after COVID. The idea was the artists were struggling during the COVID times and because art sale also dried up. Because art is a super luxury, so when essential things are needed, normally सबसे पहले art suffer होती है, people stop buying art. So during that time we thought that artists को art exhibit करने के लिए कोई easy platform चाहिए which is very affordable. So this art carnival idea came forward in the Bombay Art Society and we started it 3 years back, and this is growing like anything because every year we put up almost 2 to 3 editions. Sometimes requirement or demand comes from the field, from the artist that your art carnival is now should again have one more edition. Then it starts. तो हमारे यहाँ बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का आर्ट कार्निवल में आर्टिस्ट पूरे इंडिया से आते हैं, बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर, इवन स्मॉलर सिटीज़, गुजरात से आते हैं, एमपी से आते हैं, कोलकाता से काफ़ी आर्टिस्ट आते हैं। तो दिस इज़ द प्लेटफॉर्म वेयर आर्टिस्ट कैन कम एंड एग्जिबिट हियर इन बॉम्बे आर्ट सोसाइटीज़ प्लेटफॉर्म इन अ वेरी अफोर्डेबल चार्जेस विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन द मेट्रो cities like Mumbai, Delhi. And they get the exposure out of this, of course, through social media and through other platforms. So the society's aim is to promote art and artists for now 136 years since it got founded in 1888. And this show will continue. The number of artists every year who are connecting with the art carnival, that figure is growing, and I wish these artists who are participating that they should continue their journey. The way it happened here today is very encouraging, and this show is now coming in a long way, and I'm sure that many more visitors will come here and they will appreciate their art, because appreciation at the end of the day is also very important. Thank you. सर आप कुछ कहना चाहेंगे? शॉर्ट में कर लीजिए क्योंकि मैं लेट हूँ। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सीनियर जूनियर बडिंग आर्टिस्ट बच्चे कोई फ़र्क नहीं समझते, सभी को आगे लेके एक बहुत ही शानदार जर्नी है और आर्टिस्ट को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है, इंकरेजमेंट मिलता है, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है और ऐसा सपोर्ट होना चाहिए आर्टिस्ट को ताकि वो आगे बढ़ सके। मेरा पैशन बचपन का रहा है, तो अब मैं करीब इसमें 14 ईयर्स से मैं हूँ इसमें पेंटिंग की फील्ड में काम कर रही हूँ। और एक्चुअली मेरी सारी पेंटिंग कुछ बोलती है, कुछ संदेश देती है। तो मैं वुमेन पे ज़्यादा वर्क करती हूँ। वुमेन में काफ़ी पावर होता है, शक्ति होता है, बट वो उसको पहचानती नहीं। उसकी आदत होती है दूसरे पर डिपेंड रहने का। तो मैं पेंटिंग के थ्रू ये बताना चाहती हूँ, जैसे वो पेंटिंग के थ्रू, कि उसमें काफ़ी शक्ति है, एनर्जी है, वो खुद पर डिपेंड रहे, दूसरों पर कम डिपेंड रहे। और ये है अपने वुमेनहुड को इंजॉय करें, उसको सेलिब्रेट करें। ये पेंटिंग मेरी कर रही है, तो ये मेरा संदेश होता है पेंटिंग के थ्रू। मैम आपका नाम? विभा प्रसाद। थैंक यू। अपने नाम के साथ इंट्रोड्यूस कीजिए और आपके पेंटिंग के बारे में। मेरा नाम धर्मेश मकवाना है और मूलजी नाम से मेरी पेंटिंग इंट्रोड्यूस करता हूँ मैं। तो यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। ये मेरी जो पेंटिंग्स है, ये ऑयल पेंटिंग की गई है लिनन के ऊपर। इस जो पेंटिंग का जो मकसद है वो लोगों को एक आशा दिलाना है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये 15-16 सेंचुरी में जब भी लोग दुनिया को एक्सप्लोर करने निकले थे, तब जो जहाज़ से, मतलब जैसे बोट से बाहर निकलते थे कि दुनिया में ग्लोब देखेंगे हम, कहाँ पर क्या है, कैसे है, तो वो एक आशा के साथ जाते थे कि हाँ हमें कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा। वो होप नहीं छोड़ते थे। वहाँ पानी नहीं होता था, खाना नहीं होता था, पर फिर भी उनके जो विल पावर, जो माइंड सेट होता था कि हाँ भाई हमें मतलब ढूंढ के रहना है, हम विश्व को ढूंढना चाहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने ग्लोब की शुरुआत की सर्च करने के लिए। तो ये पेंटिंग ये दर्शाती है कि आपका माइंड सेट आप स्ट्रॉन्ग इनफ रखिए, आपको ज़रूर बिल्कुल अपनी मंजिल मिलेगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
बारे में अगर कुछ शेयर करें। मैं गुजरात भावनगर से हूँ और मेरी वाइफ का नाम सोनल है। इसने ये बनाया है। ये बनाने के लिए 47 डे लगा था। हर रोज़ 6 से 8 घंटे वो काम कर रही थी और ये बनाने के लिए उसने बहुत टाइम दिया है। और इसके अंदर सारी डिज़ाइन बनाई, गणेश जी है, मोर है, कुंभ है, ऐसी डिज़ाइन बनाई है। और वो आर्ट भी सिखाती है, जिसको सीखना है। आज तक उन्होंने 100 से प्लस महिला को ये सिखाया है और अभी 20 महिला ये काम भी कर रही है कि आप यहाँ आओ और ये सीखो। और मेरी वाइफ सबको सिखाती भी है। Hi, I am Shomili from Kolkata. So you can see my paintings. These 4 are my paintings. Mainly I like to paint something with women's emotion, girls' emotion, and mostly figurative. You can see my paintings, some desire, maybe some hardship, whatever women are normally going through. That is my main subject for all my paintings. These paintings or all my paintings. And I really like to work with watercolor, and also these days I am trying to do with acrylic or oil. So these are my paintings. Hope you like. And any other question for me? Yeah. Thank you so much. Yeah. I'm Shraddha Shah from Mumbai. I draw my, so this is Tree of Life, my interpretation of Tree of Life from traditional Indian art heritage designs. This is Royal Garden from Indian designs, and I inspired from my mom's old sari, and the whole inspiration is about Sanchi art. Thank you.